Okay, I think finally everyone is here. There are two people missing. Let's just wait for like 2-3 more minutes max, and then we'll start. Oh, मेरे background on है क्या? Shit, I was just experimenting with it. Thank you. No one will take me seriously like this. I didn't realize. Thank you, yaar. वैसे इनका सॉफ्टवेयर बहुत इम्प्रूव हो गया, मतलब बैकग्राउंड में once you put a background they are able to put it nicely. पहले इतना लोकल लगता था, थोड़ा बेटर लगता है. Yeah, I know. Crazy, no? I'm teaching from International Space Station, some shit like that. Okay, so today we'll do the first class of mathematics. कि mathematics in general exist ही क्यों करता है, सीधे वहीं पे पहुंचते हैं. तो the thing is that everything that we have in this modern world like exists because of what a lot of scientists did. Scientists like Newton, like he created so much of math that helped us make all the modern technology that we use, the cars that we use, the rockets that we use, the devices that we use. वो सब पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि न्यूटन बैठ के कैलकुलस बनाया. उसको फिजिक्स में कुछ समझ में आया, लेकिन विच वाज ग्रेविटी, लेकिन वो समझा नहीं पा रहा था, तो उसको बैठ के पूरी कैलकुलस बनानी पड़ी, अ वे टू एक्सप्लेन. एंड बिफोर दैट there were Roman people and Arabian people who are very good with math, and they created the number system that we use, and they used to use that for so many calculations. Early calculations were used to create structures. जो भी हम लोग architectural marvels देखते हैं, including the pyramid and all, they all required some fundamental level of mathematics and understanding of geometry and shapes. That's why they were able to do it. So in essence, math is a tool to quantify something, to write an equation of. You need to clearly understand this कि math एक tool है, that's it. वो एक modern tool है and nothing more and nothing less. There is no fancy thing about math. Math की as and when जरूरत पड़ी, math उतना advance होता गया. It like you can go back to say barter system कि जब हमने barter system शुरू किया, जब हम exchange करने लगे, तब math की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ने लगी होगी, because you had to use ratio and proportion, profit and loss and everything. तो वहां पे मैथ स्टार्ट होता है. एंड देयर आर 4 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ मैथ व्हिच वी विल डिस्कस टुडे. अगर आपको ये 4 फंडामेंटल पिलर क्लियर है, देयर इज हार्डली एनी क्वेश्चन दैट यू कांट अंडरस्टैंड. लाइक you might face some issue in solving them, but you will be able to articulate as to what to do. करना क्या है ये तो समझ लोगे, कैसे करना है something we will learn over the course of our whole syllabus, but करना क्या है ये आपको फंडामेंटल लेवल पे समझ में आने लगेगा. So first and foremost, just one second. Pencil is acting up again. So first and foremost pillar is the number system. The number system that we use, basically 1 से लेके 10 तक वाला जो number system है, उसको जो हम use करते हैं, that is the fundamental pillar of everything that is there in math. Can anyone tell me why we use 10 number system? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Why do we use 10 number system? Why not 15? Why not 5? Why not 4? Why exactly 10? ऐसा क्यों हुआ कि हम 10 number system को ही use करते हैं? Can anyone guess? Can anyone tell me?
कि ऐसा क्यों हुआ? Maybe because they are like the 10 numbers from which we can form any number, the basic numbers. Yeah, that happened because we finalized on 10 numbers, right? Yeah. Amit gave the right answer because go at a primitive level. You have 10 fingers. So on fingers, you can count 10 numbers. That was the fundamental reason why we have a 10 number system. Because it was convenient. Convenience के लिए तो हम चीजें करते हैं, है ना? So that's how the number system came into being. So it's very important to understand that our number system is a 10 number system, or we call it as 10 base number system. So basically, if I'm writing a number, say 5,356, you can say that this number is 5 into 1000 plus 3 into 100 plus 5 into 10 plus 6. Right? Can I write this? Yes, sir. We can say this, right? So this is where the fundamental concept of mathematics begin, that we use a 10 number system, and in 10 number system every number can be written like this. So what's happening is, if there's a number, say a 4-digit number, what it denotes is powers of 10. So the number that comes on the unit digit is a 10 power 0 number. Here the number is 10, here the number is 10 square, here the number is 10 cube, and so on. Now what do I mean by this? If I say the number is 3657, so you can write it as 3 into 10 cube plus 6 into 10 square plus 5 into 10 plus 7 into 10 power 0. Anything raised to power 0 is always equal to 1. So I can write this as 3 into 1000 plus 6 into 100 plus 5 into 10 plus 7. Every number can be broken down like this. This is very important to understand fundamentally कि number actually है क्या. Okay, and because of the fact that it is a 10 number system, this system has certain properties. कुछ properties है इस system में जो कि inherent है, like it's completely inbuilt in the system. Like the first thing is divisibility of 2. What is the divisibility of 2? किसी को अगर पता हो तो कि 2 की divisibility क्या है? I know I'm going to the very basic level, but it is very important for all of you to understand this. ठीक है? Like have some patience with me. Divisibility of 2 क्या होती है? Every even number is divisible by 2. Yeah, so we say that every even number is divisible by 2. What is an even number? Every other number. I mean, this will become a paradox. An even number is a number which is divisible by 2. So it's like very paradoxical. So basically what's happening is, no matter how big a number is, last digit should be 0, 2, 4, 6 or 8. Last digit should be even, no matter how big the number is. And that is the divisibility of 2. 2 की divisibility क्या है? Last में 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ हो. अब ये कहाँ से आया? How do we derive this? Can you think about this? Now, like I have told you how a number system is. कि every place is a 10 raised to power. This is 10 power 1. This is 10 square. This is 10 cube. This is 10 power 4 and so on. So why do we have to just check for the last number? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि 33 is not divisible by 2 and 34 is divisible, or say 536 is divisible, 537 is not? How are we able to comfortably say this? हम ये कैसे तुरंत बोल देते हैं कि ये divisible है, ये divisible नहीं है? What's happening? It follows a pattern. What pattern? Because Because our last number is even number and it is easily divisible by 2.
Yeah. So why don't we have to check for previous numbers? पीछे के नंबर क्यों नहीं चेक करते हैं? नंबर तो पूरा डिवाइड करोगे ना, खाली लास्ट नंबर ही क्यों देखा? Because it follows a pattern, and once you What is recognize the that pattern? pattern, Like you're giving the right answer, it's just saying it's half. What pattern? that every second number is divisible by 2. Okay. Like every So other number is divisible by 2. what's happening is, like I said, like let's say there's a 5-digit number, say 4, 3, 7, 6, 5. If I write it, I would write it as 4 into 10,000 plus 3 into 1,000 plus 7 into 100 plus 6 into 10 plus 5. Now, अब क्या हो रहा है? यूनिट डिजिट के नंबर को छोड़ के हर डिजिट में there is a multiple of 10. Can you see this? Do all of you agree कि 10 है, नहीं तो 100 है, नहीं तो 1000 है, नहीं तो 10,000 है, नहीं तो 1 लाख होगा, बट एक 10 का मल्टीपल है. यस सर, है ना? तो इसकी वजह से क्या होगा? ये सारे इंडिविजुअली नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे, क्योंकि 10 इज डिविजिबल बाय 2. So individually, this first number, second part, third part, and fourth part are divisible by 2. So only thing that we need to check is the last number. बस हमें लास्ट नंबर चेक करने की जरूरत है, उससे पहले चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है कि सेकंड डिजिट से या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1000 होगा, या तो 10,000 होगा. तो अब लास्ट नंबर अगर 5 है तो डिविजिबल नहीं है, अगर ये 6 होता तो डिविजिबल होता. Is this clear to everyone? Can I get a raise of hand from everyone before I continue? सब लोग एक बार हैंड रेज कर दो अगर क्लियर है तो. ओके. Saurabh, were you tech master for any of the Toastmasters meeting? कभी टेक मास्टर थे क्या? हाँ भैया था, मैं अराउंड 2 मीटिंग्स के लिए था. I have created polls, मतलब 7 questions डाले, लेकिन मैं वो polls broadcast कैसे करूँ? ओके, मैंने मतलब questions बना दिए हैं, तो मुझे broadcast करना है. एक्चुअली मेरे में तो ऑप्शन आता था मोस्टली साइड में, बट कई बार नहीं आता था, तो अमर ऑलरेडी करता. मैं तुम्हें co-host बना दूँ तो तुम्हें दिखने लगेगा? लैपटॉप में दिखेगा, मैं फोन से यूज कर रहा हूँ. अच्छा ओके, अगर पॉसिबल हो तो एक बार आ जाना, बिकॉज मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं और मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है. ओके, मैं चेक करता हूँ, बस 2 मिनट. ठीक है. सो नाउ इफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 इज क्लियर, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 4? 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? बाकी लोग बताओ, मतलब तुम्हारा तो करा ही हुआ है ना डिविजिबिलिटी. What's the divisibility of 4, guys? Last 2 digits should be divisible by 4. Okay, so the divisibility of 4 says that the last 2 digits should be divisible by 4. Now again, same question. Why? ऐसा क्यों होता है? Anyone apart from Soumik who wants to give it a try? कि ऐसा क्यों होता है? सर बिकॉज जैसे अभी आपने डिविजिबिलिटी बाय 2 में बताया था हाँ. कि 10 के पावर लाइक जो नंबर था 43765 उसमें दैट वाज 40,000, मतलब 4 into 10,000, तो 10,000 is divisible by 4, 1,000 is divisible by 4, 100 is divisible by 4, but 10 is not divisible by 4.
परफेक्ट सो व्हाट्स हैपनिंग इज कि 10 is not divisible, लेकिन 10 से कोई भी 10 की पावर 10 से बड़ी are all divisible by 4. 100 is divisible, 1000 is divisible, 10,000 is divisible. तो अगर मैं कोई भी नंबर लूं जैसे 3 6 7 5 4 3 2, so this would be 3 into 1 1 2 3 4 5 6 plus 6 into 1 1 2 3 4 5 plus 7 into 1 1 2 3 4 plus 5 into 1 1 2 3 plus 4 into 100 plus 30 plus 2. So if I leave 30 plus 2 aside, every other number is divisible because 100 और 100 के ऊपर की power 4 से divisible है ना? So basically we just need to check the last two digit, that is 32. If it is divisible, then whole number is divisible. If it is not, then the number is also not divisible. Is this clear to everyone? Awesome. So let's move on. Another thing that you should always know is what happens when you divide some numbers. Let's say you're dividing 3565 by 5. तो हम कैसे करते हैं? हम ये ग्रिड बनाते हैं ऐसे 3565 by 5. तो हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ना 5 7 35. तो टेक्निकली ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू आर नॉट राइटिंग 35. ये तो हम लोग बस जल्दीबाजी में करने को लिख रहे हैं. यू आर एक्चुअली राइटिंग 3500 एंड यू आर नॉट जस्ट राइटिंग 7 here, you are writing 700. Always remember this. It's just that 0 might confuse you, तो हमें बचपन से कभी बताया ही नहीं जाता है. Okay, so essentially you write 3500 here and 700 here, and then you subtract to get 65, or basically you will start with 6, and then what happens is this 0 is changed by 1. So now I take 5 ones are 5. So what we are doing is we are subtracting 60 from 50. सौरभ मेरा पेडी है, मैंने आज ही ले लिया Zoom. अच्छा ओके, हाँ मैं तुम्हें होस्ट बनाऊंगा तभी तुम्हारे पास आएगा. ओके कूल कूल कूल, आई विल फिगर समथिंग आउट. हाँ सॉरी. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमेशा आते हैं और फिर क्या होगा, फिर ये हम 5 कैरी करेंगे तो इस 0 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड 15 एंड क्रॉस. This is technically what's happening inside division. ये 0 हम लोग कभी डालते नहीं है, तो हम मेथड तो हमें याद हो चुका होता है कि बचपन से करते आ रहे हैं, बट हमें आज तक नहीं पता चलता है कि हम कर क्या रहे हैं. So technically when you write 5 into 7, you are writing 5 into 700 and you're getting 3500. Always remember this. वो 5 7 35 नहीं होता, वो 5 into 700 3500 होता है. So basically okay. Let me just write it in a better way. So what's happening is, first I am multiplying by 700, then I am multiplying by 10, then I am multiplying by 3. तो इसको ऐड करके मिल जा रहा है 713. बस हम शॉर्टकट में जल्दी में उसको 713 लिख देते हैं. मतलब हम लोग ऐसे करते हैं 3565 को लिया 5 से डिवाइड करके, 7 35, ये कैंसिल, 6 कैरी, 1 5 माइनस साइन 1, then I carry this 5 and 3s are 15. So what you're doing inside, the mechanism that is happening inside is this, जो मैंने दूसरे तरीके से किया. 700 plus 10 plus 3 वो ऐड होके 713 दे दिया. Is this clear to everyone? Okay, it's clear to everyone. Awesome. Now tell me divisibility of 3. जो 3 की डिविजिबिलिटी होती है उसका रूल क्या होता है?
जैसे मैं कोई भी नंबर दूं, let's say the number is 3567, how do you decide if it is divisible by 3 or not? हम लोग ने ये किया ही हुआ है क्लास स्कूल में, कैसे करते हैं? We add all the numbers हाँ, and like and check the addition is divisible by 3 or not, है ना? yeah. ओके, ये सबको पता है कि हम ये नंबर ऐड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये हमने कभी पढ़ा हुआ है ना स्कूल में। सो हम लोग इसके नंबर को ऐड करेंगे तो आई विल गेट 3 + 5 + 6 + 7, दैट इज 13 5 18 3 21. 21 is divisible by 3, so whole number is. Now again, why? Same question. Why does this happen? थोड़ा सोचो ऐसा क्यों होता है, थिंक अबाउट इट। और सेम ही चीज होगी बिकॉज इट इज अ 10 नंबर सिस्टम, दिस इज हैपनिंग। क्लास सोचो थोड़ा सा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एनीवन हु वांट्स टू गेस कि क्या हो रहा है? जब हम इसको ब्रेक कर रहे 3 into 1000, 5 into 100 and 6 into 10, 7 into 1, तो सर जो भी हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है वो लास्ट में ऐड होकर 12 आ रहा है और 12 is divisible by 3. ओके, लास्ट में ऐड होके 12 नहीं आ रहा होगा, 21 आ रहा है। तो ये मतलब ये ऐसा क्यों होता है, दैट इज द क्वेश्चन। सर क्योंकि जैसे हम लोग 4 में चेक कर रहे थे तो सब हो रहा था डिविजिबल, मतलब 10 से ऊपर, तो इसलिए हम लोग लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे थे। इसमें कोई भी डिविजिबल नहीं होता है, ना ही 1000, ना ही 100, ना ही 10, तो इसलिए हम सबको ऐड कर रहे हैं। परफेक्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन उसका सेकंड स्टेप क्या है? डिविजिबल नहीं हो रहा है लेकिन सबको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या दे रहा है? देखो मैं सेम नंबर लेता हूँ, 3 into 1000 प्लस 5 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 7। अब मैंने 100 को अगर 3 से 1000 को 3 से डिवाइड किया तो इट विल गिव मी अ रिमाइंडर ऑफ 1, क्योंकि 999 होता है। 100 भी मुझे 1 का ही रिमाइंडर देगा, 10 भी 1 का ही रिमाइंडर देगा, और ये 1 से मल्टीप्लाइड है, ये भी 1 का ही रिमाइंडर देगा। तो हर डिजिट, चाहे यूनिट हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उसमें जो 10 की पावर है that is always giving you a remainder of 1 when divided by 3। और मैंने ये बताया कि डिवीजन में क्या होता है एक्चुअली में, कि आप एक नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर जो रिमाइंडर बचता है फिर उसको फिर से डिवाइड करते हो। इट इज रिपीटेड डिवीजन। पहले आपने 700 से डिवाइड किया, फिर 10 से किया, फिर 3 से किया। दिस इज हाउ एक्चुअली डिवीजन हैपेंस। तो सिमिलरली
I can say that if that's the case, so 3 is the remainder that I get from here, 5 is the remainder that I get from here, 6 is the remainder that I get from here, and 7 is the remainder that I get from here. अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे मिल गया 21. ठीक है, अगर 21 भी 3 से डिविजिबल है तो परफेक्ट, नहीं है तो प्रॉब्लम है. ठीक है, इज दिस क्लियर? भैया एक बार फिर से, ये मुझे डिविजिबल समझ आ गया बट क्यों होता है ये नहीं समझ आया. ओके सौरभ, ये समझ में आया कि 10 की कोई भी पावर को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर देगा. हाँ हाँ. यहाँ तक क्लियर है कि 10 की कोई भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9999 से हमेशा 3 डिविजिबल होगा, है ना. ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट स्टेप में सारे नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया. एक मिनट, मुझे ये फिर से करना है. देखो 3 into 1000 है, प्लस 5 into 100 है, प्लस 6 into 10 है, प्लस 7 है. ठीक है, अगर 3 into 1000 प्लस 5 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 7 है, फिर मैं इसके पूरे को 3 से डिवाइड करूं या एक एक पार्ट को 3 से डिवाइड करूं, एक ही बात होती है मैथ में, जो मैंने अभी दिखाया डिवीजन में, कि आप करते वही हो लेकिन बस लिखते अलग हो. तो ये मुझे क्या दे देगा, 3 into 1 रिमाइंडर देगा, फिर ये क्या देगा 5 into 1, ये क्या देगा 6 into 1, और ये क्या देगा 7. ये समझ में आया सौरभ? हाँ. तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 7 6 13 5 18 3 21. तो मुझे रिमाइंडर मिला ऐड होके 21. अब अगर ये रिमाइंडर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरा नंबर डिविजिबल है. अगर यहाँ 21 की जगह 20 आ जाता तो पूरा नंबर ही डिविजिबल नहीं है. अब समझ में आया? हाँ. क्योंकि डिवीजन में हम एक्चुअली यही करते हैं, हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिमाइंडर को फिर डिवाइड करते हैं, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पहले 700 से मल्टीप्लाई किया तो 3500 मिला, फिर उसके बाद मुझे 60 रिमाइंडर बचा. समझ रहे हो? फिर हाँ मैंने भैया. 60 से सब्ट्रैक्ट किया, फिर लास्ट में मेरे पास अगर ये रिमाइंडर 0 आया तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है. ठीक है, तो इसीलिए 3 का रूल क्या हो जाता है कि आपके पास जितनी भी डिजिट्स है उनको ऐड कर दो और वो एडिशन शुड बी डिविजिबल बाय 3. ठीक है, सो आर द लाइक कॉन्सेप्ट्स क्लियर सो फार समवॉट कि नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, एक रफ आइडिया हो गया. लाइक आई विल गो इन डिटेल, देयर इज अ प्रॉपर सेक्शन ऑफ नंबर सिस्टम दैट विल टेक at least 10 classes, but अभी ये मतलब fundamentally clear हो गया. Like I'm just launching a poll, if you are clear with it, just you can vote yes or you can vote no. आपके सामने आ गया होगा. Okay, 6 of you have voted, 7 8 भैया 9th भी वोट कर दो तो आगे बढ़े. अच्छा सौरभ, तुम 2 बार हो क्या, उसकी वजह से है? नहीं, एक ही बार. ओके कूल, सो इट्स क्लियर टू एवरीवन. वी कैन नहीं इट्स ओके, चल. हाँ, तो नंबर सिस्टम के फंडामेंटल्स समवॉट क्लियर हो गए. सेकंड पिलर ऑफ मैथ इज केस एंड कंस्ट्रेंट. What do I mean by cases and constraints? Are the restrictions that you apply to a particular system. कुछ conditions लगाते हो जिस वजह से वो mathematical problem बन पाती है. तो अब जैसे say for example मैं बोल रहा हूँ कि price of mango is 50 rupees. तो मैंने एक restriction लगाया ना कि mango का price 50 रुपए है, एक constraint लगाया system पे. नहीं तो mango का price कुछ भी हो सकता था, मैंने एक नंबर अटैच कर दिया उसपे कि मैंगो का प्राइस इतना है. तो वो नंबर अटैच करने की वजह से इट बिकम्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. सो दैट इज द सेकंड सिनेरियो व्हिच इज केसेस एंड कंस्ट्रेंट. तो इसका यूसेज क्या होता है? जैसे ये क्वेश्चंस आपने कई बार पढ़े होंगे कि 10 years ago Ram was twice as old as Sham.
ये पढ़ा है ना? तो ये क्या है? ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ये एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो जो राम की एज है वो श्याम की एज से डबल है। तो ये प्रॉपरली एक कंडीशन दी हुई है to get a equation. I will come to equation. Equation is the fourth pillar of math. लेकिन इसको करने के लिए ये समझना पड़ेगा ना कि ये कंडीशन है कि 10 years ago Ram was twice as old as Sham, या कि there was a profit of 700 rupees after selling a watch. कि हमने घड़ी बेची, उसको बेचने में 700 रुपए का प्रॉफिट आया। ये कंडीशन लगाई ना मैंने कि मैंने उसको बेचा, उस ट्रांजैक्शन में मुझे 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड कि दीज कंडीशंस आर द फंडामेंटल पिलर्स। हर मैथ के सवाल में ले दे के होता तो यही है ना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? एक कंडीशन होती है। उसको अगर आप कंडीशन की तरह देखोगे कि हाँ सिस्टम पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है, नहीं तो अगर जैसे मैं राम वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम नहीं बोलता तो मुझे क्या पता राम कितना बड़ा है, श्याम कितना बड़ा है। इससे एक रिलेशन बन गई ना राम और श्याम के बीच में। और सेकंड वाले केस में क्या हुआ, एक रिलेशन बन गई ना कि अगर मैं एक घड़ी बेचूंगा तो आई विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 700 रुपीज। तो से द सेकंड स्टेप ऑफ द क्वेश्चन इज कि आई सेल 6 वॉच, हाउ मच प्रॉफिट डू आई गेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Again I'm saying I'm going very fundamental, it's very important, that's why I'm going fundamental. तो अगर मैं ये बोलूं तो इसमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एक घड़ी बेचने में 700 रुपए का मुनाफा हो रहा है, 6 घड़ी बेचने में कितना मुनाफा होगा? आपने क्या किया, 700 को 6 से मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट 4200। ये आप तभी कर पाए ना जब आप समझे कि हाँ एक घड़ी से 700 रुपए बन रहा है मेरा। अगर आपको ये समझ में ही नहीं आता तो आगे कैसे बढ़ते? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केसेस एंड कंस्ट्रेंट, कि कुछ केसेस और कंस्ट्रेंट दिए होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और आपको दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी बी इज राइट एंगल। सो क्या हो रहा है कि देखो देयर इज एन इनफिनाइट सेट ऑफ ट्राइंगल्स, इनफिनाइट सेट है। एबीसी ट्राइंगल आप कैसे भी बनाओ, उसमें राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है एक एंगल, ठीक है। तो बेसिकली आप कितने भी ट्राइंगल बनाओ क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसमें ये एंगल 90 डिग्री हो, ए बी सी। सो इट इज रेस्ट्रिक्टिंग, पुटिंग सम रेस्ट्रिक्शंस। और अगर इसके साथ मैंने ए बी और बी सी की लेंथ दे दी तो मुझे एक एग्जैक्ट ट्राइंगल मिल जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ए बी इज 5 एंड बी सी इज 10, तो मैं स्केल से ड्रॉ कर सकता हूँ ना कि बी सी 10 है, ए बी 5 है और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। प्रोट्रैक्टर यूज कर लिया। तो क्वेश्चन में ये सब लिखने से क्या हुआ, आई केम फ्रॉम इन्फिनाइट टू वन ट्राइंगल। इसीलिए हम कंडीशंस देते हैं मैथ में कि हम एक ट्राइंगल पे आ सके, फिर उस ट्राइंगल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई कि केसेस एंड कंस्ट्रेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो अब आप हर क्वेश्चन जो आज तक मैथ में पढ़ा है उसमें आपको दिख जाएगा कि कोई ना कोई कंडीशन दी होती है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Just one second. Okay, there are two people who are yet to vote. कहाँ हो भाई, जल्दी करो।
So the first challenge that I was facing of taking an online class was कि I don't know if you're paying attention or not. तो ये regular poll डालते रहो तो पता तो चलता है कि हाँ सुन रहे हो, नहीं तो म्यूट बैठे हो, पता नहीं लेटे हो, क्या कर रहे हो, बॉक्सेस में बैठे हो. I have no idea. Like you're muted and your video is off. So I came up with this idea of polls कि अब मैं हर 10 मिनट में एक poll डालता रहूँगा. So apparently there is one person who hasn't voted. कहाँ हो भाई? This should give me names also. Who has voted what? Cool. Moving on. Once we have cases and constraint, the third pillar of mathematics is assigning a variable. Now, what do I mean by this? कई बार क्या होता है, जैसे let's go back to our Ram and Shyam example. यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 years ago Ram was twice as old as Shyam. अब ये मुझे कॉन्सेप्चुअली तो समझ में आ गया कि एक कंडीशन दी है, लेकिन अब मैं इसको मैथ में कैसे लिखूं? ना मुझे राम की एज पता है, ना मुझे श्याम की एज पता है. अब मैं हाउ डू आई राइट दिस इन मैथ? तो ये करने के लिए मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ना, कुछ लेना पड़ेगा, तभी मैं वहां पे पहुंच पाऊंगा. तो जैसे मैं बोलता हूं कि लेट एज करंट, आज की एज ऑफ श्याम बी से कैपिटल एस. लेट करंट एज ऑफ श्याम बी एस. अगर मैं ये एस वेरिएबल नहीं लेता तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता ना, मैं सॉल्व कैसे करूंगा? तो दैट्स व्हाई द थर्ड फंडामेंटल पिलर दैट कम्स इन मैथ इज असाइनिंग अ वेरिएबल. तो अगर हम वेरिएबल असाइन कर दिए कि लेट करंट एज ऑफ श्याम बी एस, अब क्या होगा? 10 years अगो श्याम की एज क्या हो जाएगी? 10 साल पहले श्याम की एज क्या हो जाएगी अगर अभी करंट एज एस है तो? It will be s plus 10. 10 years ago s minus 10. S minus 10. या तो बेसिकली अगर करंट एज एस है तो 10 years ago एज हो जाएगी s minus 10. So this is the importance. Now you have mathematically represented age of Shyam. तो अब इसके साथ आप ऑपरेशन कर सकते हो. जब एज ऑफ श्याम मिल गई तभी तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ता? तो दैट्स व्हाई वी आर लाइक वेरिएबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड टू मैथमेटिक्स. और वेरिएबल लेने से ही पूरा अलजेब्रा स्टार्ट होता है. जो हम ये पढ़ते हैं कि x plus y whole square is x square plus y square plus 2xy. तो you need to understand कि x and y are basically numbers. We just don't know their values yet. ये एक नंबर ही है, लेकिन हमें अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है. श्याम की एज भी एक नंबर है जो हम नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अभी पता नहीं है. वही तो सॉल्व करना है, तभी तो आप मैथ लगा रहे हो, समझ रहे हो? लेकिन जब तक उसको एक वेरिएबल, कोई अल्फाबेट असाइन नहीं कर रहे हो तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल. सो इस वेरिएबल क्लियर टू एवरीवन? कि वेरिएबल का इंपॉर्टेंस क्या है मैथ में? Cool. Now what happens is after this we need the help of relational operators. Relational operators कौन से होते हैं? Less than, greater than और equal to. So let's take the same case जो मैंने दिया था कि 10 years ago age of Shyam was age of
Ram was twice as much as Sham. ये मैंने थोड़ा पहले बताया था कि ये एक कंडीशन है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा कि अगर हम शाम की एज को s ले लें तो 10 years ago उसकी एज हो गई s minus 10, तो राम की एज क्या होगी 10 years ago? अगर हमें ये निकालना हो तो क्या होगी 2 into s minus 10, क्योंकि s minus 10 शाम की एज थी और राम की उससे डबल है। तो ये जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया इक्वल टू, दिस गिव्स अस द फोर्थ पिलर ऑफ मैथमेटिक्स एंड दैट इज इक्वेशंस। अब हमने क्या किया, अब हमने एक वेरिएबल को किसी चीज से इक्वेट करा दिया कि राम की एज निकल आई 10 साल पहले 2s minus 10 या 2s minus 20, अगर इफ आई ओपन द ब्रैकेट। अगर मुझे एक और कंडीशन दी होती तो मैं राम और शाम की एग्जैक्ट एज बता पाता। अगर मुझे एक भी कंडीशन और दी होती तो मैं बता ले जाता ना, कि जैसे मान लो दिया होता आई मीन कि शाम इज 20 years old टुडे। अगर मान लो ये कंडीशन और दी होती कि शाम इज 20 years old टुडे, तो राम की व्हाट वाज द एज ऑफ राम 10 years ago, ये क्वेश्चन आता कि राम इज 20 years old टुडे, व्हाट वाज द एज ऑफ राम 10 years ago, तो क्या करोगे? What will you do? They're asking Ram's age 10 years ago, right? Not the present age. Not the present age. Ram ki age 10 years ago kya thi? That's what I'm asking. Just hold on one second. Someone is ringing the bell. क्या होगा? ट्वेंटी हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, s की जगह 20 डाल दोगे ना, तो s इक्वल्स टू 20 अब आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे अगर s को मैं 20 से रिप्लेस करूं तो आई विल गेट 40 minus 20, that will give me Ram's age 10 years ago as 20. Okay, this has become clumsy. Let me just rub it and do it again. हमें क्या मिला, age of Ram is equal to 2s minus 20 10 years ago। और फिर हमें पता चला कि शाम की एज 20 है। So if I put this s equals to 20 here, I will get 2 into 20 minus 20. So basically I'll get 40 minus 20. So Ram's age 10 years ago will become 20. Is this clear to everyone? Okay, so let's take one more example of ये अगर क्वेश्चन आए कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्वाइस इट्स कॉस्ट प्राइस,
selling price of an article is twice its cost price, and if the selling price of 20 articles is 800, what is the cost price of one article? तो सबसे पहले what variable will you take, what will be the equation, and how will you solve it? So these are the fundamental steps. First you understand the constraints. According to constraints, take a variable, then using that variable make an equation and then solve. तो अब हम इसको कैसे करेंगे? Just give like 2 minutes to this before we move forward. आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार सॉल्व करो आप लोग. Everyone send me an answer on chat. इसका आंसर क्या आएगा? Then only I'll continue so that I know कि ये clear है सबको. Are you able to articulate everything? एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है. Okay, I got 2 answers. Yeah, third answer. बाकी लोग. Oh yeah, you can collaborate with me by the way. जिसने भी ये रेड बनाया, you can write on this board if you want, but don't. I wanted to ask you, what is that written? Oh, I'm so sorry. It's 800. 800. Okay. Actually, I keep it vertical. No, sometimes my handwriting goes all the way. Yeah, Sakshi, it's correct. बाकी लोग भी बताओ जल्दी से. दिव्यजीत तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ? दिव्यजीत विनर. Okay, Divyajit sent an answer winner. Yeah. So basically the answer is 20. And how did we do it? The first thing that is given, or the first condition that is given, is that selling price is 2 times the cost price. So let's assume the cost price is CP. या X ले लेते हैं. Let's assume the cost price is X. So selling price will become 2 times X. है ना? And this is for one article. अगर मैं पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो I'll basically get selling price of 20 articles. 20 selling price is equal to 40x. फिर मुझे selling price of 20 articles दिया हुआ है 800 rupees. So basically I can replace this by 800. So I will get 800 equals to 40x. That will give me x as 800 by 40, which will give me 20 rupees. Is this clear to everyone? कि हमने क्या किया? Okay. Now that we have understood it, mostly for most questions, the fundamental flow is understanding the constraints that are there. मैथ में क्या क्या restriction दिए हैं, क्या क्या condition दिए हैं. उसके बाद assuming variables, then creating equation, and then solving. And all of this will happen in the reality of our number system.
जो हमारा 0 to 9 वाला सिस्टम है। So this is the final flow of most of the math questions. कि पहले आप समझो कि कंडीशन क्या दी है, कंस्ट्रेंट क्या दी है। अब कंडीशन देने की रियलिटी चेंज हो सकती है। Say for example you are a rocket scientist and you have to figure out the speed with which your rocket should launch so that it's able to penetrate the atmosphere, कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा के निकल भी पाए। तो उसके लिए कंस्ट्रेंट क्या है कि उसको वो वेलोसिटी निकालनी है। तो उसके लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगी। अब जैसे मान लो यू आर अ शॉपकीपर एंड यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ से 1 लाख पर ईयर, तो 1 लाख पर ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, वो एक वेरिएबल हो जाएगा आपके लिए। आप वहां पे मैथ यूज कर सकते हो। और आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, या मान लो आपको अपनी बजटिंग करनी है कि मेरे ये एक्सपेंस है, तो अगर मेरे इतने एक्सपेंस है तो मेरी इनकम कितनी हो कि मेरे सेविंग्स इतनी हो जाए। तो अगर मुझे ये करना हो तो फिर हम इनकम सेविंग एक्सपेंस वाले रियलिटी में आ गए। तो बेसिकली मैथ इज यूज्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर। या सिंपल सी बात कि 5 men can do a work in 10 days, how much time will 10 men take? 5 लोग 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों को अगर मैंने रख दिया तो वो कितने दिन में काम कर पाएंगे। तो हमें वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा कि एक दिन में एक आदमी काम कितना कर पा रहा है, उसकी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, ले दे के आपको मोर और लेस यही करना है। दिस इज द फाइनल फ्लो। और ये सब करने के लिए हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं। और नंबर सिस्टम में 0 से 9 का सिस्टम होता है, which is a 10 based system, and it is 10 based system because we have 10 fingers. So I'll just quickly recap everything. We started with number system and I explained कि जो हम numbers use करते हैं that is a 10 based number system. After that we dived into how we can break down the number and write it like this कि 3657 अगर number है तो उसको हम कह सकते हैं 3 into 1000 plus 6 into 100 plus 5 into 10 plus 7. Then we moved and took an did I erase? Yeah. Then we moved and proved the divisibility of 2, 4 and 3. कि divisibility of 2, 4 और 3 क्यों आ रही है? 2 की इसीलिए आ रही है क्योंकि सेकंड डिजिट से there is either 10 या 100 या 1000 या तो 10,000, ये सारे नंबर है और ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। तो मुझे बस लास्ट डिजिट चेक करने की जरूरत है। 4 में क्या हो रहा है, मुझे लास्ट 2 डिजिट चेक करने पड़ रहा है क्योंकि थर्ड डिजिट से 100 आ जा रहा है और 100 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि एवरी पावर ऑफ 10 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। हर पावर ऑफ 10 एक 1 का रिमाइंडर देता है। उस 1 की रिमाइंडर की वजह से अगर हम सारे नंबर्स को ऐड कर दें तो वी कैन चेक इट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 3। Then we went into what actually happens inside division. So when you write 5 sevens are 35, you are actually writing 5 into 700, which is 3500, and then you are waiting for remainder, which is 60. Then you write 5 into 10, 50, and then you get 15, and then you add 3, and you get the final answer as 713. हम लोग को ऐसे करने की आदत है, लेकिन एक्चुअली में हम ये कर रहे होते हैं। तो these were some of the properties of number system. So मैंने ये सारी properties इसलिए बताई क्योंकि you need to get comfortable कि हाँ हम 10 based system को use करते हैं। तो every second digit is multiplied by a power of 10. तो जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा 37, एक तो मुझे 37 में इतना प्यार क्यों है, 7986. Say I write this number. This number is nothing but 7000 plus 900 plus 80 plus 6. You can either write it like this or write it like this. Always remember कि आप जो भी नंबर लिखते हो 7000, जो भी नंबर लिखते हो you can break down every number like this. ठीक है? Then we came to cases and constraints. So cases and constraints are the condition. जो condition और जो restriction हम किसी system पे लगाते हैं उसको हम केसेस एंड कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं।
आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, जो कंडीशन और जो रेस्ट्रिक्शन हम किसी सिस्टम पे लगाते हैं उसको हम केसेस एंड कंस्ट्रेंट्स में डालते हैं. हमने ये सब कंडीशन लगा दी ना इस पे कि ये कंडीशन है इस सवाल में, ये कंडीशन है इस सवाल में, और इसमें रियलिटीज भी आ जाती है. रियलिटी से मेरा क्या मतलब है कि एक शॉपकीपर की रियलिटी डिफरेंट है, एक बायर की रियलिटी डिफरेंट है. कि जैसे आप खरीदने जा रहे हो तो आप क्या देखते हो, जैसे आप मान लो शॉपर स्टॉप में जा रहे हो, ठीक है, आपका बजट है 10,000 रुपीज कि मुझे 10,000 रुपए खर्च करने हैं एंड आई नीड टू गेट अ सूट. सो यू विल ट्राई टू फाइंड ऑल द सूट्स दैट आर चीपर देन 10,000. यही तो करोगे जाके. योर लिमिट इज कि मैं 10,000 स्पेंड कर सकता हूँ, मुझे जाके शॉपिंग में सूट खरीदना है, तो आप वो सारे सूट देखोगे जो 10,000 से कम में है. ठीक है, फिर आपने देखा कि वहां पे डिस्काउंट लगा है, तो अब आपको एमआरपी पे डिस्काउंट लगा के सोचना पड़ेगा ना कि अच्छा हाँ, एमआरपी अगर 15,000 है या 20,000 है, उस पर 50% डिस्काउंट है. एमआरपी 20,000 है, उस पर 50% डिस्काउंट है, तो मतलब ये तो मेरे बजट में ही आ रहा है ना. ले दे के तो है तो 10,000 का ही, मुझे पे कितना करना पड़ेगा 10,000, तो ये तो मेरे बजट में आ गया. तो ये सब आप क्या कर रहे हो, ये कंडीशन लगा रहे हो अपनी रियलिटी पे. और मैथ का हर सवाल कोई ना कोई कंडीशन को मैथ में रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर रहा होता है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, मैथ इज नथिंग बट अ टूल क्रिएटेड बाय अस टू मेक आवर लाइफ इजियर. जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, जो ऑटोमोबाइल आप यूज कर रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, ये सब पॉसिबल है क्योंकि हम उसको मैथ में रिप्रेजेंट कर पाते हैं. सो इन एसेंस, अंडरस्टैंडिंग मैथ will widen your perspective to everything. हर चीज में आपको नंबर्स दिखने लगेंगे, और जब वो दिखने लगता है तो हम बोलने लगते हैं कि हाँ आप स्मार्ट बन गए हो. और how people call it that you have a higher IQ. Higher IQ is nothing but being able to represent things logically and finding patterns. That is it. That is what IQ is. IQ का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप मैथमेटिकली अपने दिमाग में सोच पा रहे हो और आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. कुछ और नहीं होता है, कुछ हाईफाई नहीं होता है. अगर आपकी मैथ अच्छी हो जाए ना तो आपका आईक्यू अपने आप इंप्रूव हो जाएगा. कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल से कि नहीं आईक्यू कांस्टेंट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है. मैथ अच्छी करो, आईक्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा. मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज़ जब आप मैथ अच्छी कर लेते हो तो आपको सब समझ में आने लगेगा ना लाइफ में. तो ऑब्वियस ही बात है. सो दैट इज व्हाट केसेस एंड कंस्ट्रेंट इज. मूविंग टू द थर्ड वन इज दैट कि हमें कभी-कभी वेरिएबल लेना पड़ता है. हमें वेरिएबल क्यों लेना पड़ता है कि हमें मान लो कोई कंडीशन दी है, जैसे हमने ली कि 10 साल पहले राम की एज श्याम से डबल थी. ये कंडीशन हमने ली थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. दिस 10 years ago राम was twice as old as श्याम. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए we need to assign a variable. एक अननोन वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा श्याम को, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी विल नीड टू डू इज टू रिप्रेजेंट श्याम विद एन अल्फाबेट. कि मान लो एस रख दिया, तो मैंने यही तो किया. और जब हमें वेरिएबल मिल जाता है फाइनली हम उसको इक्वेट कर देते हैं. इक्वेशन के लिए यू नीड अ रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेटर जो किसी दो चीजों में रिलेशन बता सके. तो या तो वो लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, या इक्वल टू होता है. जैसे से फॉर एग्जांपल आई हैव टू कंपेयर माय हाइट. जैसे one is me or another is someone who is 5 foot 5 inch. Let's say that person is anyone, Aman. Aman is 5 foot 5 inch. I am 5 foot 10 inch. ठीक है, तो अब इसको मैं मैथ में कैसे लिखूं? इसको मैं मैथ में ऐसे लिख सकता हूं कि my height is greater than Aman's height. अब मैंने ये कंडीशन को मैथ में रिप्रेजेंट कर दिया. और ये मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मैंने एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया. लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू में से अगर आप कुछ भी यूज करते हो, दैट इज इन एसेंस अ रिलेशनल ऑपरेटर. तो हम राम और श्याम वाले एग्जांपल पे फिर से आते हैं. तो क्या था कि 10 years ago Ram was twice as old as Shyam. 10 years ago, Ram was twice as old as Shyam.
इसको अगर हमें मैथ में रिप्रेजेंट करना है, हमने अभी शाम को एक वेरिएबल ले लिया s, so this is present age 10 years ago would be s minus 10 and I know कि 10 years ago जो राम की एज थी that will be 2 times the age of s minus 10. अब मैंने क्या किया, मैंने equal to यूज किया. जब भी मैं equal to यूज करूंगा तो I get an equation. अब इक्वेशन के बाद बस एक ही स्टेप बचता है, सॉल्व. That's it. So the final flow chart of solving any math question is number 1, understanding the constraints. Number 2, assigning variable. Number 3, making an equation. And number 4, solving. और ये सब हम करते हैं using the reality of number system, which is 0 to 9. Cool. So this is what we have done so far. Before we move on, there is one more poll that you can answer. It has 3 questions. I'm waiting for your answer. Then we'll move on. इसको आंसर कर दो तो हम आगे बढ़ते हैं. Yeah, I got creative with the options just to keep it interesting. I don't want to become a typical math teacher यार कि वो मेरी वही वाली accent हो जा रही है कि आप इस variable को x लो और ये सब वो सब. I want to be cool. Okay, I'm still waiting for one more response before I close this poll. कोई किसी एक ने respond नहीं किया. जल्दी से आंसर कर दो तो मैं आगे बढ़ूं. Okay, perfect. सबने reply कर दिया. Some people are at 60-40. Okay, 25% of the people are at 60-40. Okay, cool. तो जब हम इसको अप्लाई करने लगेंगे तो ये 60-40 वाले I guess yes में आ जाएंगे. Perfect. So basically conceptually you guys were able to understand this. I will check the results later. किसने क्या आंसर किया, which I don't know if it generates or not. Moving on. So the further steps are number 1, break down every question. जो भी question दिया जाए, break it down into these 4 fundamental building blocks of math. जो 4 fundamental pillars बताए मैंने math के, उसमें उसको break down करो. Second thing that you need to do is find out if variable is required or not, or basically find out what is asked. Your second step should be कि पूछ क्या रहे हैं. And then third step should be कि if there is a need to take a variable, make an equation. And fourth is solve. Okay, can someone tell me the formula of simple interest? Simple interest का formula क्या होता है? SI equals to PRT upon 100. Right. So SI equals to PRT upon 100. This is a reality. ये एक reality है simple interest की. इसके constituents क्या है? Okay, let me rub everything or go to another board. Simple interest equals to PRT upon 100. अब इसके constituents क्या है? Number 1, simple interest, which is basically the interest we pay. ठीक है. Second constituent क्या है? Rate. Percent rate at which we pay
इंटरेस्ट, टी क्या है, टाइम पीरियड, एंड पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। हमने जितना पैसा लिया, कि जैसे मान लो हमने 20,000 का लोन लिया, उस पे 10% इंटरेस्ट लग रहा है, बस दैट इज इट। दिस होल फॉर्मूला हैज 4 वेरिएबल्स। तो कभी भी कोई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, यू विल बी गिवन 3 एंड asked to solve one. It is as simple as that. इससे बाहर वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैथ में सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। इसमें 4 वेरिएबल है, जिसमें से वो 3 की वैल्यू दे देंगे। लाइक अगर उन्होंने दे दिया, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि प्रिंसिपल इज 10,000, rate is 10%, interest earned is 5,000, what is time? अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, वहां पे वर्ड प्रॉब्लम में दिया होगा। अब अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दिया तो एसेंशियली तो यहीं पहुंचोगे ना, कि लाइक से फॉर एग्जांपल इट इज गिवन दैट आई बोरोड 10,000 rupees and the interest I ended up paying was 5,000. The rate at which I borrowed the money was 10%. How much time did I have the loan for? ऐसे ही तो दिया होगा इंग्लिश में, उससे अलावा थोड़े ना कुछ दे देंगे। भाई अंग्रेजी के भी रूल है, मैथ के भी रूल है, उससे बाहर थोड़े ना चले जाएंगे। और दोनों हमने बनाए हैं। In the end we have made it to make our life easier. ठीक है, तो अब अगर ऐसा कुछ दिया है तो टाइम क्या आएगा? All we need to do is understand कि interest equals to PRT upon 100. अब इसमें आप इंटरेस्ट की वैल्यू डाल दो, प्रिंसिपल की डाल दो, रेट की डाल दो, तो टी तो मिल ही जाएगा ना, कि 5,000 इक्वल्स टू 10,000 इंटू रेट इज 10, 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 10 इक्वल्स टू टी। तो टी आ गया 5 years। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को नंबर 1 ब्रेक डाउन किया एंड आई अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग। फिर आई रियलाइज व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट्स आस्क्ड इज टाइम, तो आई अज्यूम कि वेरिएबल टाइम है। फिर मैंने इक्वेशन बनाई और फिर मैंने सॉल्व कर दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एवरी फ्रिकिंग मैथ क्वेश्चन, दैट इज इट। मतलब मोस्ट ऑफ द मैथ क्वेश्चन स्टार्ट एंड एंड हियर। It's just that the language in which they ask can be complicated. Sometimes क्या होगा, इस क्वेश्चन को अगर मुझे टफ करना है, मान लो say for example I want to make it tough, what I will do is I will give you principal, I will give you rate, and I will give you a relationship between interest and time. तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रिंसिपल और रेट पता है, अभी ना इंटरेस्ट पता है ना टाइम पता है, लेकिन इंटरेस्ट और टाइम की रिलेशनशिप पता है। तो अब क्या होगा, अभी हमें 1 वेरिएबल से सॉल्व हो जा रहा था, अब हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। बस कॉम्प्लेक्सिटी तो भरी, और कुछ थोड़ी ना चेंज हुआ। I'm getting a WhatsApp message. Okay, cool. Awesome. Just 1 second. Are you clear with this concept? तो कोई पेपर सेटर होगा या कोई जो क्वेश्चन बना रहा होगा, उसके पास लिमिटेशन क्या है, कि इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो वो उसके रिलेशनशिप के साथ जितना खेल सकता है उतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाहर वो कुछ कर ही नहीं सकता है। ज्यादा ये हो जाएगा, आपको खाली रेट दे दी और रिलेशनशिप इंटरेस्ट, टाइम और प्रिंसिपल का दे दिया। अब क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो गया, 3 वेरिएबल हो गए और 3 रिलेशनशिप हमें मैनेज करनी है। Can I get a raise of hand if this is clear? कि that is the max that can happen. इससे ज्यादा कुछ थोड़े ना हो जाएगा।
है ना? So step number 1 before we begin our preparation is that कि मैथ के खुद के लिमिटेशन है और बस वो समझने हैं हमें. मतलब there is nothing like math is tough. ये भूल जाओ, like forget this altogether that math is tough. Math is not tough. It's just that we are taught it. कभी बताया नहीं गया कि 2 की डिविजिबिलिटी होती क्या है, बस रटा दिया गया. या हमें कभी बताया नहीं कैसे खेल सकते हो, बस रटा दिया गया कि भाई देखो ये PRT by 100 फॉर्मूला है. So all we need to do is understand it at the deeper level. And again, with CAT preparation or any good aptitude, किसी भी aptitude exam की preparation के लिए there are 3 steps. First is being very conceptually clear. अगर conceptually clear नहीं हो, रट के aptitude नहीं निकलेगा. ये आपके कॉलेज के एग्जाम नहीं है या बोर्ड एग्जाम नहीं है कि रट लिया और परसेंट आ गए. रटने से नहीं होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट के ऊपर यू नीड टू सेकंड योर थॉट एंड थर्ड इज प्रैक्टिस. तीसरी चीज प्रैक्टिस है. तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गेटिंग अ ड्रीम कॉलेज या डिजायर्ड परसेंटाइल इन एनी काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. अब जैसे मैं कैट का ही एग्जांपल लूं तो a while back I was reading an article. So have you guys heard about this company called Shree Cement? है ना? तो जो श्री सीमेंट का MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, he is 67.5 year old, बांगर सर. उनका एक बार इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि how do you keep yourself active at this age? You know what his answer was? His answer was, I write CAT every year. If I get more than 90, I work. If I'll get less than 90, I will retire. This was his answer. उसने literally ये आंसर दिया कि बांगर सर ने बोला कि भाई मेरे 90 से ज्यादा जब तक आते रहेंगे मैं काम करता रहूंगा, 90 से कम आएंगे तो I will retire. परसेंटाइल. वो ऐसा क्यों बोल पा रहा है? Because he knows कि CAT is an aptitude exam. It's a national aptitude exam which tests your alertness of mind, how conceptually clear you are. तो ये रटने से नहीं होने वाला है और मैथ का डर रख के तो बिल्कुल नहीं होने वाला है. And there is nothing to be scared about from math. What happens is कि हम शुरू से इतना डरे हुए हैं कि हमने कभी उसमें कभी अपना एनर्जी और टाइम दिया ही नहीं. Once we start focusing on it, investing more energy in it, हमें खुद ही अच्छा लगने लगेगा, हमें खुद ही पसंद आने लगेगा जब हमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे. तो ऑल वी नीड टू डू इज बी पेशेंट एंड जैसे ही हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे अच्छा लगने लगेगा कि यार मैथ आ गई और कुछ थोड़े ना होता है. दिस इज व्हाट इज हैपेंस. लाइक इफ आई वांट टू क्रिएट योर कॉन्फिडेंस, तो जो मैंने ये सब क्वेश्चन पूछे थे वो जैसे वो सेल्स प्राइस वाला था, कहाँ गया ये वाला. I will give you like 150 questions like this, and if you solve all 150, you will be confident. This is what it will take. मतलब I can fool you to be confident right now. I'm telling you the trick. कि अगर मैंने ऐसे बकवास से 150 क्वेश्चन आपको दे दिए और आपने सारे 150 सॉल्व कर लिए और मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ congrats, good job, you were able to solve 100% of the question. एक एक्सपर्ट का वैलिडेशन मिल गया, वहीं का वहीं मैथ का डर खत्म हो जाएगा. इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है. Like first time I started loving math was when I got 100 out of 100 in my class. That's it. That's where my love affair with mathematics started, and it's still progressing. तो बस इतना ही लगता है और कुछ नहीं होता है. So before I close this class, I want you all to just take this, मतलब दिमाग से निकाल दो कि मैथ टफ है. बिल्कुल 100% निकाल दो. कुछ भी टफ नहीं है मैथ में. It's very easy. बस स्ट्रक्चर फॉलो करना है. और स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है? कहाँ गया फ्लो यार? हाँ ये रहा. द फ्लो इज अंडरस्टैंड द कंस्ट्रेंट्स एंड कंडीशन, उसके हिसाब से वेरिएबल बनाओ, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व कर लो. ये सब अगर आपको करना है तो आप नंबर सिस्टम में करते हो. आगे जाके जब ज्योमेट्री आएगी तो हम एक रेडियन सिस्टम और एंगल सिस्टम आ जाता है. रेडियन या एंगल सिस्टम, जिसमें हम एक एंगल लेने लगते हैं थीटा, बस. और कुछ थोड़े ना होता है. एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे. कुछ नहीं होगा, हम जो भी पढ़ेंगे उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती जाएगी. बट एट अ फंडामेंटल लेवल यही 4 चीजें करनी है.
क्वेश्चन को समझना है, वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल से इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। और हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, भले ही टाइम लगे, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स, इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग यू टेक अ क्वेश्चन, कि कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। 25 मिनट लेके करो, क्या फर्क पड़ता है। जब आप अपनी थॉट बनाने लगोगे तब आप फास्ट हो जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो वही 20 मिनट का क्वेश्चन 30 सेकंड में होने लगेगा। द प्रॉब्लम इज वी स्टार्ट विद स्टेप 2। हम स्टार्ट इससे करते हैं कि हम पहले थॉट बनाएंगे और प्रैक्टिस करने लगेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, एटलीस्ट फॉर एन एप्टीट्यूड टेस्ट। आप रट के एट मैक्स 85 ले आओगे, लेकिन 85 के ऊपर यू नीड सम एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की बिना 85 के ऊपर तो नहीं जा पाओगे, ये गारंटी है, चाहे कुछ कर लो। और एप्टीट्यूड खाली मैथ का नहीं होता है। देखो, कोई चीज लिखी हुई है उसको पढ़ के समझना भी अपने आप में एक एप्टीट्यूड है। लाइक इफ यू आर एबल टू रीड समथिंग एंड एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की ऑथर बोलना क्या चाह रहा है या इस पैराग्राफ में दिया क्या है, जो कि इंग्लिश सेक्शन में होता है, दैट इज ऑल्सो एप्टीट्यूड। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में कोई पजल को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो एप्टीट्यूड। इट इज नॉट जस्ट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये तो एक सेक्शन है। लेकिन अगर ये आपका क्लियर हुआ तो इसका कॉन्फिडेंस और इसके कॉन्सेप्ट्स will help you a lot in logical reasoning and reading comprehension. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मैथ के क्वेश्चन समझते हैं ना, तो जो आपका स्टोरेज सिस्टम है वो इंप्रूव हो जाता है। यू आर एबल टू ब्रेक डाउन अ लॉन्ग पैराग्राफ इनटू पार्ट्स एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप इन बिटवीन, कि अच्छा ये लाइन इसलिए लिखी है तो इस वजह से ये लाइन इसलिए लिखी है, इस वजह से ये लाइन इसलिए लिखी है। जितनी जल्दी आप ऐसे फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बिना लिखे बना लोगे, उतनी तेज आपका एप्टीट्यूड हो जाएगा। तो मुझे थ्योरेटिकली इतना ही कन्वे करना था आज। आई एम प्रीटी मच डन विद द क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो। एंड दिस इज रिकॉर्डेड, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग बाय टुमारो मॉर्निंग। सो रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लेना। एनी क्वेश्चन व्हाटसोएवर। इन जनरल प्रिपरेशन का भी पूछना हो तो पूछ लो, इन जनरल अबाउट मैथ कुछ पूछना है तो पूछ लो। सो दिस वाज क्लास 0, दिस वाज क्लास 0 ऑफ मैथ। क्लास 1 से आई विल रेफर ऑल दीज थिंग्स, जो मैंने पढ़ाया इसको मैं रेफर करता रहूंगा। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि मैंने क्या बताया, ठीक है। तो इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन देन कैन यू जस्ट टाइप नो इन चैट सो दैट आई नो कि तुम्हारा सब क्लियर है। कि बस जस्ट टाइप क्लियर, इट्स क्लियर, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो। Okay, I got 4 clears. Others? Sir, I had a question. हाँ विनय पूछो। सर एक्चुअली ना मैं एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो अभी कुछ जब ये क्वेन की क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मैंने जो मैथ्स के जो कंसेप्ट्स वगैरह पढ़े थे और क्वेश्चंस किए थे वो थोड़े डिफरेंट थे। अब जब मैंने कैट के लिए सेम मैंने परसेंटेज और रेशियो पढ़ा तो थोड़ा डिफरेंट था। थोड़ा क्या था? डिफरेंट था। जब मैंने कैट के लिए वो चीजें पढ़ी तो कंसेप्ट्स भी मतलब ऐसा लगा कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो मैं ना उन दोनों चीजों को लेके कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बाकी पेपर्स तुम दे रहे हो उसमें मैथ के क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जो कैट का पेपर दे रहे हो उसका मैथ का क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल लेके समझाया कि अगर आपको टफ क्वेश्चन बनाना है तो आप एक ही की वैल्यू दो और 3 के रिलेशन दे दो, तो सामने वाले को सोचना पड़ेगा ना कि हाँ रिलेशन कैसे लगेगा, क्या लगेगा। तो बेसिकली कैट इज एट अ मोर एडवांस लेवल, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। फंडामेंटली कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम है, बट कैट नीड्स मोर प्रैक्टिस, मच मोर प्रैक्टिस, क्योंकि वो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नहीं देते, वो डायरेक्ट कभी नहीं पूछते। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। यस सर, ठीक है। ओके सर। क्योंकि बाकी जो एग्जाम्स है जो उसमें क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कि हाँ ये फॉर्मूला है ऐसे है तो आप सॉल्व कर लोगे। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं उसमें बस स्पीड चाहिए। कैट में इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग की किसको वेरिएबल ले। लाइक से फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया है, अगर आपने उसमें एसपी को एक्स माना तो मान लो क्वेश्चन को करने में 3 मिनट्स लगेंगे, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में अगर आपने सीपी को एक्स मान के स्टार्ट किया तो हो सकता है 20 सेकेंड्स लगे। तो कैट इज ऑल अबाउट दिस, अंडरस्टैंडिंग की क्या वेरिएबल लेना है। इसीलिए मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग की क्या वेरिएबल लेना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप।
और दिस लिटरली हैपेंस, ये क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ है कि हमने वेरिएबल कुछ और ले लिया तो पता चला 4 मिनट लग गए, और अगर वेरिएबल कुछ और ले लेते तो 20 सेकंड हो जाते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पढ़ा यस सर। है ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सेम क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जा रहा है जब समझ में आ गया, नहीं तो 5 मिनट लग रहे थे। So that is the problem here. Okay, Sneha, like I'm just using simple interest as an example. I will share the recording lecture. आप उसको देख लेना. Then you can message me and ask me any question. Cool. तो जिसने भी ये बोला सिंपल इंटरेस्ट वाली बात, तो आप इसको आराम से देख लेना और फिर मुझे बोल देना। भैया ठीक एक है? बात ये ना- पूछूं, हाँ इशिका, मतलब इससे इंडियन नाइट क्लास के बारे में एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ Like we have 2 sheets P&L और percentage की, like total 63 questions and then 51 questions in CI. तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पूरा करेंगे डिस्कस आज? We will start with profit and loss. अगर profit and loss डिस्कस हो गया तो हम इंटरेस्ट भी डिस्कस करेंगे। भैया मुझे ये बोलना था, आई मीन सी हम लोगों ने कर लिया CI, बट देन अभी ना मैंने प्रॉपर एक पूरा दिन देखकर अच्छे से नहीं पढ़ा है CI को। सो अब कोई बात नहीं, क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो क्लियर हो जाएगा ना, क्या इशू है? नहीं, पॉइंट ये है कि लाइक अगर हम लोग आज P&L परसेंटेज पर डिस्कस कर ले 63 क्वेश्चंस, सो इट विल टेक एन आवर, राइट? एंड देन अगर हम CI कर ले, सो वील हैव अ डे प्रॉपर, मैं अच्छे से पढ़ लूंगी, मैं डाउट्स अपने खुद ही सॉल्व कर लूंगी, बिकॉज आई एम नॉट क्लियर एट सम पॉइंट्स बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड इट प्रॉपर्ली। ठीक है, खाली P&L डिस्कस कर लेंगे, आई डोंट माइंड। ठीक है, थैंक यू सो मच, ये बोलना था। Okay, cool. So if you guys don't have any doubt, then I'll just wrap up this class and then मतलब कुछ बच्चे मेरे previous batch के हैं जो मतलब they have already studying from me, तो we do a doubt discussion class at 10 p.m. So that's what she was talking about. बाकी जो whoever is new, this was first class of mathematics. यहाँ से start होगा। इसके बाद जो चीजें हैं, simple interest, profit and loss जो भी है, वो पूरा इसी टाइम में कवर होगा 6:30 to 8:30 के बीच में। Okay, so I am wrapping it up. If you guys have any question, now is the time, or I'll just end the meeting. Chalo, thank you for attending the class.